Welcome. Let's take a look at our top story this hour. Pakistan has become the epicenter of the coronavirus outbreak in South Asia, with over 1,000 cases. Amid this surge, Pakistan has established facilities in Pakistan Occupied Kashmir to quarantine and treat the suspected cases. Pakistan, who keeps advocating for human rights in Jammu and Kashmir, is now turning Pakistan Occupied Kashmir into a quarantine center. According to Intel inputs, coronavirus patients from other areas of Pakistan are being moved here. Now, this comes despite unrest in the region due to the sudden move. Protests have erupted in Mirpur, keeping a tight vigil against any quarantine center. Meanwhile, we at WION have earlier told you about the dire conditions of the Pakistan quarantine camps. On your screens are the visuals from Taftan, located near the Iran-Pakistan border. The lack of doctors and the evident hygiene issues can be questioned after looking at these visuals. The Taftan facility is currently housing more than 100 people. The situation at the quarantine camp is frightening, where Frontier Corps can be seen using force on quarantined people. Reports of ineffective quarantine procedures have also emerged. This comes as Pakistan Prime Minister Imran Khan asked people to practice self-isolation. Interestingly, he has ruled out the possibility of a total lockdown, saying the situation is not as bad as Italy. Remember, only Sindh province is in a state of lockdown. Meanwhile, Pakistan has now banned all international travel until the 4th of April. Restaurants and malls are closed in the country's capital, Islamabad, for 15 days. WION's principal diplomatic correspondent, Siddhant Sibal, gets us more on this. Even as the COVID crisis spreads across Pakistan, there are now ground reports from POK that situation is not good. In fact, there are reports that people are unhappy with the quarantine centers that are being created there, which are not up to international standards and inhumane. And locals are protesting this, asking for intervention by World Health Organization. We know the number of people infected by the COVID crisis in Pakistan have crossed 1,000, especially when it comes to the most affected region, the southern state of Pakistan, the southern province of Pakistan. Sindh is the most impacted region, with many cases, and primarily these coming from pilgrims, Pakistani pilgrims who had gone to Iran, and when they came back, the infection started rapidly. No measures were taken to make sure that they were put in place in quarantine or under certain regulations, and that has deteriorated. That has made the situation more vulnerable and more not up to the mark. So by and large, if we look at these reports, these are concerning reports, and we know that Pakistan has now become kind of an epicenter in the South Asian region regarding the COVID crisis. And now we are crossing live to where the Health Ministry is giving the latest updates on COVID-19. सेक्रेटरी साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है सारे चीफ सेक्रेटरी से, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन मेजर्स के ऊपर चर्चा की। साथ ही उन्होंने स्टेट की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी डिस्कशन किया इन टर्म्स ऑफ कि उनके हॉस्पिटल और उनके लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट कैसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसेंशियल सर्विसेज और इसेंशियल कमोडिटीज जो पब्लिक के पास पहुंचनी चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है। स्टेट्स को स्पेसिफिकली हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट की है, उसके तहत कई स्टेट में, करीब 17 स्टेट में कार्य शुरू भी हो चुका है, जहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे पेशेंट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो, और हमारे देश में देशव्याप्त सब जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरिएंट कर पाएं कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो। उसके लिए एम्स दिल्ली के साथ मिलके अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और केस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरिएंटेशन उसके द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो हमारा निम्हांस, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस है, उसके द्वारा भी बिहेवियरल हेल्थ मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग हम देश लेवल पर शुरू कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि आशा, एएनएम्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि कटिंग एज लेवल पर देश में काम करते हैं, उनको भी ओरिएंट करने के लिए कोविड के बारे में हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, कम्युनिटी सर्वेलेंस और पब्लिक हेल्थ
सर्विसेज एट द कम्युनिटी लेवल, उसके बारे में भी नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हुए, इसके साथ ही स्टेट लेवल ट्रेनिंग और आने वाले कुछ दिनों में देश के हर एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को भी कोविड-19 के बारे में ओरिएंट करते हुए, ताकि बिल्कुल लास्ट स्थाई पर भी हम कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकें, उसको ओरिएंट कर सकें। ये एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है। मुख्यतः हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने लास्ट एंड के हेल्थ वर्कर तक पहुंचते हुए उसके द्वारा अपनी सर्विसेज देश के हर नागरिक को पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कंट्री फुली गियर्ड अप है। ये चैलेंज बहुत बड़ा है। इस चैलेंज को हमें सबको कलेक्टिवली मिलकर लेना है और इसमें सबका सपोर्ट क्रूशियल है। कोई भी एक नागरिक अगर वो एक गलती करता है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में, तो उसका इफेक्ट उसके आसपास के लोगों को, उसकी फैमिली को, समाज को, सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं अपील करूंगा कि हर एक नागरिक इसमें हमें अपना सहयोग दे, ताकि मिलकर हम इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद। मैं गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने इंफॉर्मेशन शेयर करें। जैसा कि मैंने कल भी कहा, गृह मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह चेष्टा कर रही है कि इस लॉकडाउन पीरियड में एनफोर्समेंट के साथ साथ आपको एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में कोई कमी ना महसूस हो। स्वास्थ्य सेवाएं एवं एसेंशियल सप्लाईज, सर्विसेज और कमोडिटीज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ कदम तो बहुत ही इनोवेटिव हैं। और भारत सरकार अपनी ओर से 24/7 बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज की स्थिति को मॉनिटर कर रही है। एमएचए के कंट्रोल रूम में एमएचए के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रेलवेज, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर्स भी 24/7 मौजूद हैं, जो निरंतर समस्याओं का निदान कर रहे हैं। लगभग सभी स्टेट्स और यूटीज ने अपनी हेल्पलाइंस नोटिफाई कर दी हैं। और जैसा बीच में कुछ इंटरस्टेट कार्गो की समस्या आई थी, अब इंटरस्टेट कार्गो जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर हेल्ड अप था, वो भी काफी क्लियर हो गया है। नॉर्थ ईस्ट और जो अन्य रिमोट एरियाज है, जहां पे मेडिकल सप्लाईज इत्यादि एयर के थ्रू जाती हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में जाती हैं, वहां मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कार्गो मूवमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रही है। वो डेडिकेटेड चार्टर्स करने के लिए भी व्यवस्था कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमने स्टेट्स और यूटीज को स्पेशली रिक्वेस्ट किया है, और राज्य सरकारें बल्कि काफी एफर्ट्स कर रही हैं कि जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनके लिए शेल्टर और फूड की व्यवस्था हो। सभी लेवल्स पर हम बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो जहां है उसका वहीं पर सुरक्षित रूप से रहना उचित होगा। स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स में सुरक्षित रूप में रखें। हमने ये भी सेंसिटाइज किया है कि जो मेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आशा है कि ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इंश्योर करेंगे कि लॉकडाउन पीरियड में एसेंशियल गुड्स की सप्लाई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी समस्या ना आए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को अडॉप्ट आप लोगों ने किया है अपने हॉल में भी, और बहुत सारे मीडिया पर्सन ने जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन पूछने का भी काम किया है। तो सबके लिए आप सबका धन्यवाद। वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम 14। लव सर, सबसे पहला मेरा सवाल वो अमिताभ बच्चन के एक ट्वीट को लेकर के है, जिसमें कहा गया है कि मक्खियों के जरिए भी कोविड-19 फैल सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है इसमें? सर, मैंने ये ट्वीट नहीं देखा है, क्योंकि शायद मैं पूरे टाइम बाकी प्रिपरेशन में रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्वीट है तो टेक्निकली मैं आपको बता सकता हूं, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, मक्खियों के थ्रू नहीं फैलती है। मैं एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेता हूं। What is the assessment on the rate of progression of positive cases in India over the last 4-5 days? So that is partially covered already, but yeah. So as I highlighted, we are seeing a larger number of cases getting reported. But if we see, though the trend is not very well established, but parallelly we are realizing that the rate at which cases are increasing, we are seeing
in terms of relatively stable trend or a little bit reduction in the rate of increase of cases. This, however, does not establish a clear trend. We are hopeful that with effective social distancing measures which we are doing, parallelly our efforts in terms of proper treatment of cases which have been found, proper contact tracing of all the positive cases which have been found, and parallelly ensuring that all people who are under home quarantine or surveillance being monitored properly, we should be able to ensure that this trend continues. 38. मैं डीडी न्यूज से हूँ। मेरा सवाल होम मिनिस्ट्री से है कि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अगर कई राज्यों में देखा जाए जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लोग एक साथ कई